हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 5 की क्लास 7 एक्सरसाइज 5A इन रनिंग, राइट। एक्सरसाइज 5A के अंदर अपन क्वेश्चन नंबर जो चल रहा था दैट इज क्वेश्चन नंबर 11 सी। क्वेश्चन नंबर 11 इज दैट बाय व्हाट नंबर शुड 5 minus 5 raised to the power minus 1 be multiplied so that the product get 8 raised to the power minus 1. It is given, assume that for the solution of that question let x be multiplied. क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन? x be multiplied, then we get the product, right? तो multiply by x to minus 5 raised to the power minus 1, we multiply by x, so we get that is the answer is that is 8 raised to the power minus 1, right? According to question or statement, that is minus 5 raised to the power minus 1, 5 multiplied by x, then we get that is 8 raised to the power minus 1. So for solving that, students, take the firstly this one power is make positive. क्या बनाएंगे इसे? पॉजिटिव बनाएंगे. पॉजिटिव बनाने के लिए अपन क्या करें? टेक द रेसिप्रोकल ऑफ दिस वन minus 5 raised to the power minus 1, इसका आप रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना बन जाएगा? That is positive 5. राइट, इसकी पावर कितनी होगी? पॉजिटिव 1, हाँ, दैट इज माइनस 5 डाउन साइड और पावर कितनी होगी इसकी? पॉजिटिव 1. देन मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू, सिमिलरली ये प्रोसेस सेम इसके साथ भी करेंगे, दैट इज पावर इज पॉजिटिव 1. आप यहाँ पर पावर 1 लगाते हैं तब भी ओके, नहीं लगाएंगे तब भी चलेगा. गॉट इट? क्या किया आपने? इसका क्या कर दिया? रेसिप्रोकल कर दिया, तो ये पावर क्या बन गई? पॉजिटिव बन गई. देन आप इसको सॉल्व करें. Now take the cross multiplication for finding the value of x. x की वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, तो इस -5 को आप वहाँ क्रॉस में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे. Got it? So x equals to this one, x equals to become -5 multiplied by 1, that is become -5 upon 8. So our answer is that is x equal to -5 upon 8. Got it? Similarly take question number 13. By what number should, question number 13, next question we discuss question number 13. देखिएगा यहीं पे सॉल्व करते हैं question number 13, right? question number 13 is that same है but वहाँ पर डिवीजन है आपके पास. by what number should -31 -30 raised to the power -1 be divided to get 6 raised to the power -1? by what number should be divided? So we assume that is -30 raised to the power -1 is divided by x, then we get that is 6 raised to the power -1. okay, यही आपका. एक बार मैं और चेक कर लेता हूँ. that is -30 raised to the power -1 be divided by to get 6 raised to the power -1, राइट. ठीक है, सेम प्रोसेस है. इस बार पहले मल्टीप्लाई था, इस बार क्या करना है? डिवाइड करना है. किस नंबर से अपन डिवाइड करें? इसको -30 raised to the power -1 to get that is 6 raised to the power -1. ओके, सेम. फर्स्टली क्या बनाएंगे? पावर पॉजिटिव. तो पावर पॉजिटिव बनाने के लिए इसका क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल, दैट इज बिकम्स 1 upon -30. देन दिस वन डिवीजन साइन कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लिकेशन साइन, तो रेसिप्रोकल ऑफ x इज दैट इज 1 upon x. अभी x upon 1 है तो अब कितना हो जाएगा? 1 upon x इज इक्वल टू दैट इज 1 upon 6. इसकी पावर क्या है? नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? टेक द रेसिप्रोकल ऑफ 6, देन इट इज बिकम दैट इज 1 upon 6. Then after student for finding the value of x, x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो x वहाँ होना चाहिए, इसको वहाँ भेज देंगे और 6 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे इन क्रॉस. कोई भी अगर नंबर आपके पास डिवाइड में है तो जब उस साइड जाएगा तो इससे जाएगा मल्टीप्लाई में, और जब वहाँ डिवाइड में है तो इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. सो दिस वन 6 मल्टीप्लाई बाय 1, दैट इज 6 upon -30 इज इक्वल टू दैट इज x मल्टीप्लाई बाय 1, दैट इज x. ओके, गॉट इट? Now take the cancellation, that is 6 1 is 6, 6 5 is 30. So our answer is that one, that is x equals to -1 upon 5. Got it? So we can say that this one -30 raised to the power -1 be divided by -1 upon 5. So we get that is 6 raised to the power -1. Got it? Very simple. Remaining part you try to solve. Okay? Now student, the next question is that question number 14. 3 by 5 raised to the power 3 multiplied by 3 by 5 raised to the power -6
इक्वल टू 3/5 रेज टू द पावर 2x minus 1. Find the value of x. किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको? x की. Now students see, we know that if the base are same, then power will be added. Here is the base 3/5 and 3/5. Both are same. Then power will be added. So this one is becomes 3/5. Whole power is 3 minus 6. But यहाँ पर देखिए माइनस साइन है, बट ये क्या हो गया? यहाँ पर माइनस हो रहा है. कटता तो अपन प्लस है, बट यहाँ पर नेगेटिव साइन है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस. दैट इज 3 minus 6 is equal to 3/5 raised to the power 2x minus 1. Now on comparing the both side, दोनों साइड अपन कंपेयर करेंगे पावर्स का. एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं ऐसे. दैट इज 3/5 raised to the power 3 minus 6 is minus 3 is equal to 3/5 raised to the power 2x minus 1. On comparing the both side, both base are same. Then equating the power, दोनों बेस अगर सेम हो दोनों साइड तो अपन पावर को क्या कर सकते हैं? इक्वेट कर सकते हैं. तो ऑन कंपेयरिंग, we get that is minus 3 equals to twice of x minus 1. Transpose minus 1 to that side, that is minus 3 plus 1 is equal to 2x. Plus minus minus, that is minus 2 equals to twice of x. Divide by 2 to that side, that is x equals to minus 2 upon 2, which is equal to minus 1. So our answer is that is x equal to minus 1. Got it? Now student, the next question is that question number 15. Find out the value of that. Solve them this one. देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सबसे पहले इनको पावर जो बेस है ना उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करें. देखिए कैसे मैं कहना चाह रहा हूँ. देखिए 3 raised to the power 5 दिस वन, राइट. क्या अपन tan को ऐसे लिख सकते हैं? दैट इज 2 multiplied by 5 होल पावर इज 5. लिख सकते हैं ना. tan को मैं ब्रेक कर रहा हूँ 2 पार्ट्स में. इसको दैट इज 2 into 5, राइट. होल पावर इज 5 as it is. This one 25 is the square of 5. 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? दैट इज 25 डिवाइडेड बाय दिस वन 5 raised to the power 7 मल्टीप्लाई बाय दिस वन इज 3. 6 को अपन ब्रेक कर सकते हैं. यहाँ पर देखिए 3 और 2 है तो मैं यहाँ पर 3 into 2 6 को ब्रेक कर सकता हूँ. होल पावर इज 5. यहाँ तक की बात समझ में आई. देखिए क्या किया है, इसको सबको सेम बेस, मतलब बेस अगर अपने पास यहाँ पर सेम सेम होंगे इक्वल तो अपन उसको इजीली कैंसिल आउट कर सकते हैं और आंसर इजीली निकाल सकते हैं विदाउट स्क्वायरिंग. स्क्वायरिंग करेंगे ना तो देखिए यहाँ पर 10 था तो उसको मैंने ब्रेक कर दिया 2 into 5 होल पावर इज 5 as it is, right. मल्टीप्लाई बाय दिस वन 25 is the square of 5, right. So this one is 5 square. Then this one is 5 raised to the power 7 as it is. Multiply by this one 6 raised to the power 5, that is 3 into 2 raised to the whole power is 5. Got it? Now then after that, that is 3 raised to the power 5 multiply by this one break into 2 raised to the power 5 multiply by 5 raised to the power 5 multiply by 5 raised to the power 2 divided by, that is 5 raised to the power 7 multiply by 3 raised to the power 5 multiply by 2 raised to the power 5. Got it? Then after student see this one, if the base are same then power will be added. यहाँ पर देखिए 3 raised to the power 5, देखिए इसको कैंसिल कर देता हूँ. 3 raised to the power 5 से 3 raised to the power 5 कैंसिल आउट, क्योंकि सारे जो है न्यूमरेटर मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर क्या मल्टीप्लाई में है, तो अपन इसे क्या कर सकते हैं? कैंसिल कर सकते हैं, राइट. Then after 2 raised to the power 5 to 2 raised to the power 5 is also cancel out, right. Then see, if the base are same then power will be added. That is 5 and 5 base are same then power will be added. 5 plus 2 is 7. That is 5 raised to the power 7 in numerator, and denominator is remaining only 5 raised to the power 7. 5 raised to the power 7 to 5 raised to the power 7 cancel out. That is answer is 1. Got it students? So very simple, कर सकते हैं आप, easy है ना. सबसे पहले क्या करना है, वापस समझा रहा हूँ, उसको ब्रेक करेंगे. 10 को 2 into 5 आप लिख सकते हैं, 10 का ब्रेकिंग, और सिमिलरली 6 को मैंने ब्रेक किया था 3 into 2. देन पावर अपने पास क्या कर दिया, पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. अब 3 और 2 पे क्या कर दिया, पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. फिर इसको क्या करा, सिंपली क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया. गॉट इट? सी वन मोर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 इज दैट that is 16 multiplied by 2 raised to the power n plus 1 minus 4 multiplied by 2 raised to the power n divided by 16
multiply by 2 raised to the power n plus 2 minus 2 multiply by 2 raised to the power n plus 2. ओके, देखिए आपको ये क्वेश्चन दिया है, क्या करें इसको सॉल्व करने के लिए पहले इसमें से जो कॉमन आ रहा है वो अपन बाहर कॉमन ले लें, है ना, फिर उसके बाद उसे सॉल्व करें, या फिर आप कर सकते हैं या इसकी पावर्स में आप इसे कन्वर्ट कर दें और फिर आप बेस सेम करके फिर भी कॉमन ले सकते हैं, तो जैसा भी आप करना चाहें वैसा इजी है। सबसे पहले देखिए यहाँ कांस्टेंट में से क्या कॉमन है, यहाँ 16 है यहाँ 4 है, तो मैं यहाँ से 4 कॉमन ले सकता हूँ स्टूडेंट्स, ले सकते हैं ना, क्योंकि 16 और 4 दोनों में किसका डिवाइड जा रहा है, 4 का डिवाइड जा रहा है। कॉमन हमेशा वो चीज लेते हैं जिसमें दोनों चीज से क्या चल जाए, डिवाइड चल जाए। कॉमन लेने का बेसिक मतलब आप ये ध्यान रखिएगा हमेशा कि कॉमन लेना मतलब क्या करना है, डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड। दैट इज 16 और 4 में किसका डिवाइड जा सकता है, मैक्सिमम नंबर 4 से डिवाइड जा सकता है। जब आप कॉमन लेंगे 16 में 4 से डिवाइड करिए तो कितना आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू द पावर n प्लस 1, राइट। माइनस जब आपने 4 आउटसाइड ले लिया, 4 से 4 को डिवाइड कर रहे हैं तो कितना बचेगा, 1 का कोई मतलब नहीं है, तो आप 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू द पावर n कितना रहेगा, दैट इज 1 into 2 रेज़ टू द पावर n। गॉट इट, 4 के आगे आपका आउटसाइड आ गया, डिवाइडेड बाय सिमिलरली नीचे से देखिए यहाँ 16 है यहाँ 2 है, कांस्टेंट टर्म यहाँ 16 है और यहाँ 2 है, तो क्या कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन आ सकता है। मैक्सिमम दोनों में किससे डिवाइड जा सकता है, 2 से। तो 2 से यहाँ 16 को डिवाइड करेंगे, हाउ मेनी टाइम डिवाइड जाएगा, 8 टाइम। 16 में 2 का डिवाइड कितनी बार जाएगा, 8 टाइम, दैट इज 8 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू द पावर n plus 2 minus 2 is outside, so 1 is remaining, so remaining is 2 raised to the power n plus 2. Got it? यहाँ तक की बात क्लियर है। Now take the cancellation 4 to 2. How many time? 2 time. यहाँ कितना बच गया, 2. Then see this one 4 is the square of 2. 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 raised to the power 2. 4 को क्या मेंशन कर सकते हैं, 2 raised to the power 2. 4 का स्क्वायर आपने क्या दिया, 2 raised to the power 2 मल्टीप्लाई बाय 2 raised to the power n plus 1 minus this one is 2 raised to the power n. Got it? Divided by, देखिए this one 8 किसका स्क्वायर है, ये या क्यूब है, that is 2 raised to the power 3. अगर आपको बेस 2 ही रखना है क्योंकि सब में 2 ही आ रहा है, तो ये किसका 8 जो है that is cube of 2, 2 into 2 into 2, 3 टाइम, right? Multiply by this one is 2 raised to the power n plus 2 minus 2 raised to the power n plus 2. Got it? आगे देखिए, इसके बाद अपन इसको क्या लिख सकते हैं, देखिएगा यहाँ पर इसको, इस पावर को अपन ब्रेक कर लें। यहाँ देखिए 2 raised to the power n और यहाँ पर भी 2 raised to the power n, यहाँ पर 2 raised to the power n, 2 raised to the power n। अगर मैं इसको क्या कर लें, ब्रेक कर लें, n plus 2 है अपने पास, तो यहाँ n plus 1 है, तो बेस आर सेम देन पावर विल बी एडेड, तो पावर को क्या कर लीजिए, ब्रेक कर लीजिए थोड़ा सा, तो कितना बचेगा, देखिएगा 2, this one is 2 raised to the power 2 मल्टीप्लाई बाय, इसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ, दैट इज 2 raised to the power n मल्टीप्लाई बाय 2 raised to the power 1 माइनस दिस वन इज 2 raised to the power n, राइट, डिवाइडेड बाय 2 raised to the power 3 मल्टीप्लाई बाय दिस वन ब्रेक n plus 2 आपके पास है यहाँ पर, तो इसे अपन ब्रेक करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 raised to the power n मल्टीप्लाई बाय 2 raised to the power 2, 2 raised to the power n मल्टीप्लाई बाय 2 raised to the power 2 माइनस 2 raised to the power n मल्टीप्लाई बाय 2 raised to the power 2। ओके, यहाँ तक का क्लियर है, समझ में आया? पावर्स को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। आगे देखिएगा इसे क्या और अपन इसके साथ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज स्टूडेंट, दैट इज नेक्स्ट स्टेप फ्रॉम दैट साइड टू सी। नाउ 2 raised to the power n in this term and 2 raised to the power n here also, so 2 raised to the power n is common, so 2 raised to the power n is outside, that is 2 raised to the power n. Okay, got it? Then this one 2 multiply inside, that is 2 multiply by 2 raised to the power 2 multiply by 2 raised to the power 1 माइनस, देखिए यहाँ से 2 raised to the power n आउटसाइड आ गया आपके पास, तो क्या बच जाएगा, दैट इज 1 ओनली। गॉट इट? डिवाइडेड बाय, नीचे देखिए यहाँ पर भी 2 raised to the power n and 2 raised to the power n is common, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 raised to the power n, this 2 raised to the power n is common, so remaining is that is 2 raised to the power 3 multiply by 2 raised to the power 2 minus that is 2 raised to the power 2। What is friends? पहले जो कॉमन लेना था मैंने कॉमन ले लिया, है ना, बाकी इसको अंदर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर देखिएगा एक ये 2 जो है वो इससे ही मल्टीप्लाई होगा, तो इससे ही मल्टीप्लाई होगा, तो दिस वन इट्स नॉट 1, दिस वन इज 2,
कितना आ जाएगा ये आपके पास 2 इनर साइड में मल्टीप्लाई यहाँ भी हो रहा है तो यहाँ पर भी होगा, तो ये 2 जो है वहाँ पर मल्टीप्लाई होगा आपके पास, तो कितना आ जाएगा 2. Now 2 raised to the power n 2 raised to the power n cancel out. So remaining is that student, that is 2 raised to the power 2 plus 1 plus 1, that is 4. 2 raised to the power 4 minus 2 divided by 2 raised to the power, this one is 5 minus 2 raised to the power 2, right? Solve this one. 2 raised to the power 4 is 16 minus 2 divided by this one 2 raised to the power 5 is 32. Okay, 2 raised to the power 5 is 32 and this one 2 raised to the power 2 is, that is 4. आपको इतना आना चाहिए स्टूडेंट्स, है ना? That is 16 minus 2 is 16 minus 2 आपके पास कितना होगा? That is 14 divided by, that is 32 minus 4, that is 28. Take the cancellation. 14 1 14, 14 2 28. So our final answer is that is 1/2. Okay, और आपके पास अगर अलग कोई मेथड आप यूज कर रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना? बट कॉमन लेने का ये चीज का ध्यान रखिएगा, बार बार इसको देखिएगा, हर स्टेप इसको वीडियो को रोक रोक के जो आपको चीज बताइए वो वहां से आप इसको बार बार देखेंगे तो आपको और मोर क्लियर हो जाएगा. ओके, रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज यू ट्राई टू सॉल्व. ओके, थैंक यू.